So let us just quickly see what we have done in the last session. So in the last lecture हमने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फाइंड किया था. We found out what is the energy of electron in nth Bohr orbit, and I told you कि हम temporarily सिर्फ हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं. Same derivation will be for any other atom. Okay, तो if you remember, total energy of electron find करने के लिए electron, any electron has potential as well as kinetic energy. Potential energy कहाँ से आया? क्योंकि electron is moving in the field of nucleus, और kinetic because it has motion. तो kinetic energy find करने के लिए आप लोगों ने बोहर्स का first postulate use किया था, which is basically, if you remember, centripetal force mv square by r is provided by electrostatic force 1 upon 4 pi epsilon 0 e square by r square. Cancel and cancel. So half mv square equal to 1 upon 8 pi epsilon 0 e square by r. ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या तो डायरेक्टली याद होना चाहिए. So you should either remember what is the formula of potential energy directly, 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r, या तो फिर आपको याद होना चाहिए that potential energy is electrostatic potential of the nucleus at the location of electron multiplied by charge on electron. तो potential energy in short ये आपको मिलता है when you solve this 1 upon 4 pi epsilon 0 minus e square by r. और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज इट इज अ बाउंड सिस्टम, एज आई टोल्ड यू. फिर अब टोटल एनर्जी फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया था हमने. वी हैव एडेड दिस अप. तो E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R, एंड काइनेटिक एनर्जी इज 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R. तो टोटल एनर्जी आ जाता है आपके पास व्हेन यू ऐड दिस टू अप माइनस 1 अपॉन 8 pi epsilon 0 e square by r. This is total energy of electron in terms of radius. Then you substituted for r. तो इसके बाद आपने r equal to, because this is, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन nth ऑर्बिट, तो यहाँ पे हम en और यहाँ पे rn लिख सकते हैं, और rn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. You should remember what is r. n square h square epsilon 0 upon pi m e square. You have to substitute this in En. So electron energy in nth Bohr orbit turns out to be 1 upon 8 pi epsilon 0 e square upon rn. Rn is h square epsilon 0 square epsilon 0 n square, और pi m e square गया ऊपर, pi हो गया कैंसल. So when you solve this, you get En equal to minus m e raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square, और नीचे आ गया 1 by n square. So this is what you get. So if you remember after this step, अगर आपको याद होगा, तो ये जो है ये कांस्टेंट है. इसमें हर एक कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आपको मिलता है 13.6 eV में. So this is electron energy in nth Bohr orbit. If you substitute for value of m, e, h epsilon 0, you will get En equal to minus 13.6 by n square eV. तो ये था इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन nth Bohr orbit, right? Then we started with hydrogen spectrum. And as you remember, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज विच इज कॉल्ड एज बाल्मेर सीरीज, वो सबसे पहले बाल्मेर ने नोटिस किया था, एंड फ्रॉम दैट वी हैड बाल्मेर रिलेशन. और ये रिलेशन जो था ये एम्पिरिकल रिलेशन था. इट वाज बेस्ड ऑन प्योरली ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट. तो बेसिकली विदाउट गोइंग इनटू थ्योरेटिकल डिटेल, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको इसका. तो यू नो व्हेन अ गैस इज हीटेड, एंड इन दिस केस हाइड्रोजन गैस इज हीटेड, तो होता क्या है, आफ्टर यू हीट हाइड्रोजन गैस, या फिर इफ द हाइड्रोजन गैस इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इफ द हाइड्रोजन गैस इज इंसिडेंट विद
some particular frequency of photons. So in such cases, hydrogen gas, it absorbs energy, and then it was seen that this gas is basically emitting some line. So when a gas is heated, or it is subjected to strong electric field, or it is subjected to photons, some electromagnetic radiations were emitted by hydrogen gas. So when a gas is heated or subjected to electric field or incident photons or incident radiation, it was seen to emit radiation of particular frequency or particular wavelength ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. सो this is called as characteristic spectrum. So as you remember, यहाँ पे मैंने जनरल गैस का लिखा है, but Balmer did this study only for hydrogen. तो for hydrogen he saw 4 lines. एक था 6563, 4868, then 4341 and then 4204. तो ये 4 lines, 4 lines are observed by Balmer. So Balmer observed 4 lines, 4 wavelengths being emitted by hydrogen gas. कौन सा 4 लाइन थे? पहला था 6563, that is more or less orange. So these lines had wavelengths of 6563 angstrom, then 4868 angstrom, then 4341 angstrom and 4202 angstrom respectively. अब ये जो 4 लाइन्स है इसको नाम भी है H alpha, H beta, H gamma, H delta. So these lines are named as H alpha, H beta, H gamma and H delta. तो as I told you in the last session, उस टाइम तक बोहर का मॉडल आया नहीं था, उस टाइम तक रुदरफोर्ड का मॉडल भी नहीं आया था. That up to that time 1885, उस टाइम तक थॉमसन का मॉडल भी नहीं था. So ये जो ऑब्जर्वेशन है, to explain this observation, Balmer derived a formula which was based on pure observations. तो जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ, by manipulating some numbers here and there, he found out a relation. So Balmer gave a relation to explain these lines, these lines. Or if you remember, it was 1 by lambda equal to Rydberg constant 1 by 2 square minus 1 by n square, where n is equal to 3, 4, 5, 6. और r की वैल्यू जो थी, Rydberg constant की वैल्यू थी, it was 1.097 into 10 power 7.
and R is 1.097 into 10 power 7, of course per meter inverse, right? Good. So you now have a rough idea कि starting में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले बाल्मेर ऑब्जर्व्ड इट, एंड बिकॉज यू सी ये चारों लाइंस हमने लिखे हैं, दे आर इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो इसलिए सबसे पहले डिटेक्शन इसका हुआ. अब theoretical background to this was given by Bohr's model, तो उसको हम बोलते हैं बोहर रिलेशन. तो जब बोहर का एटॉमिक मॉडल आया तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल कुड एक्सप्लेन दिस लाइंस. एडिशनली सिर्फ इतना नहीं, जो यूवी में है या फिर जो इंफ्रारेड में है वो लाइंस भी प्रेडिक्ट किए. बोहर कुड प्रेडिक्ट लाइंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो द थिंग इज बाल्मेर रिलेशन, एज आई टोल्ड यू, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट इज 1885. तब तक हमको ये पता ही नहीं था कि एटम में न्यूक्लियस एट द सेंटर है, देन यू हैव ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. तो दैट इज व्हाई ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयोनाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट, तब तक आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट था बट इट वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट वाज नॉट देयर. तो बोहर का जैसे ही मॉडल आया, आफ्टर बोहर पुट फॉरवर्ड हिज मॉडल, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू टॉक अबाउट कि ये इमिशन अगर होना है तो इमिशन होने के लिए यू शुड नो एनी एटम, और हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में क्या हो रहा होगा, दैट यू हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन सिट्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड देयर आर अदर ऑर्बिट्स व्हिच आर एम्प्टी. तो हाइड्रोजन एटम में बाकी के ऑर्बिट्स तो है बट दे आर एम्प्टी. तो इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स फर्स्ट, मतलब इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. So this is important that in a normal and unexcited atom, hydrogen atom, electron is in first orbit which is called as ground state. Now if आपको पता है from Bohr's model, what is the energy? Energy is minus 13.6 by 1, क्योंकि पहले ऑर्बिट में है तो 1 स्क्वायर, तो minus 13.6 eV. So what you know is, अगर हमने इस unexcited atom को एनर्जी दिया और if the energy is equal to plus 13.6 or greater than that, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन will become free, तो it will be ionized, atom will be ionized क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा free. But what if the energy provided, if the energy supplied is less than plus 13.6, so in that case what will happen is, ये जो इलेक्ट्रॉन है it will go into higher energy states, higher orbits. अब जब ट्रांजिशन होगा वापस, क्योंकि हायर स्टेट में गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट. डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिट में है. अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट में है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन सो फोर्थ. तो डिपेंडिंग ऑन दैट ऐसे एक्साइटेड स्टेट आ सकते हैं आपके. देन द लाइफ टाइम और द टाइम interval for which this electron stays in the excited state is very small. It is 10 power minus 8 more or less, right? So ये immediately 10 power minus 8 seconds spend करने के बाद it will come down to the ground state. अब ground state में आने के लिए, if you remember, there are various possibilities. या तो ये direct भी आ सकता है. So while coming back to ground state, this can happen in a single step, or electron can go to intermediate states. तो ये multiple steps में भी हो सकता है. So each time when electron is making transition from higher state to lower state, it will emit radiation. It will emit energy in the form of photon. और वो जो energy emit करेगा in the form of photon, that is nothing but spectrum. Good. तो इतना पता होना चाहिए. फिर हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, हम जनरलाइज करेंगे, हम बोलेंगे let the electron is making transition from nth higher orbit to pth lower orbit, और हमको nth orbit में energy of electron का फॉर्मूला पता है, हमको pth orbit में भी energy of electron का फॉर्मूला पता है.
फिर हम बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट यूज करेंगे En minus Ep and will prove this relation again. Okay, so this is what you need to know. इतना आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. So we'll put down little bit of theory and then derive. So in a normal unexcited hydrogen atom, the electron is in its, is in first orbit, This orbit, this state is known as ground state, If energy greater than or equal to, or equal to plus 13.6 eV is supplied or is absorbed by the electron, it becomes free. और इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन. This is known as ionization, and the energy supplied is called as ionization energy या फिर binding energy. That's okay, right? So this is known as ionization. If the energy absorbed by the electron, is less than or equal to, not equal to, strictly less than, is less than plus 13.6 eV, then electron क्या करेगा? Electron will jumps to higher orbits. This is known as excitation. And the electron is said to be in excited state. So as you know, while coming back to its ground state, electron can take a single step or it can take multiple steps and go to intermediate states. So while going back, well, ये भी है कि लाइफ टाइम भी लिख दोगे तो अच्छा है. If you can say कि why, क्योंकि बेसिकली अगर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, लेट अस से अगर 10 पावर 2, 10 पावर 3 या फिर इवन फ्यू सेकंड्स भी स्पेंड करता है, तो फिर यू हैव टू वेट फॉर डी एक्साइटेशन. फिर आपको स्पेक्ट्रम बहुत धीरे धीरे मिलेगा, मतलब it will be a time consuming process. It is good that it does not spend that much of time in excited state. So electron spends approximately 10 power minus 8 seconds in excited state. Okay, and then goes back to ground state. So while going back to, इसको मैं आपसे GS बोलूंगा, while going back to ground state, it may undergo single step or multiple steps. So each time
when electron jumps from higher energy state or orbit to lower energy orbit, it emits photon. It emits radiation, or it emits energy in the form of photon. It emits energy in the form of photon. यहाँ पे strictly photon होगा. In some cases the energy is also emitted in the form of heat. For example laser. तो lasers के केस में the energy is emitted in the form of heat, तो फिर उसके लिए cooling system लगता है हमको. So anyways, we are not discussing laser here, so I will just skip that part. So this is what you know. So each time when electron jumps from higher energy state to lower energy state orbit, मतलब it emits energy in the form of photon. तो अब एक काम करेंगे. Consider an electron jumps from nth higher orbit to pth lower orbit. We know that energies of electron in respective orbits is आपको पता है En equal to minus me raised to 4 upon 8. आगे यहाँ पे था n square और क्या था h square epsilon 0 square. You see, me raised to 4 8 h square epsilon 0 square 1 by n square. And ये तो nth ऑर्बिट का हो गया. and pth ऑर्बिट के लिए EP equal to minus me raised to 4 8 h square epsilon 0 square 1 by p square. Right? So what do you know? जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी डिफरेंस जितना है उतना एनर्जी इमिट होगा. मतलब nth ऑर्बिट में जितना एनर्जी है माइनस pth ऑर्बिट में जितना एनर्जी है उतना डिफरेंस वो इमिट करेगा. सो व्हेन, और ये कहां से आया? ये आया थर्ड पोस्टुलेट. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, according to Bohr's third postulate, when electron jumps from nth higher orbit to pth lower orbit, it emits energy equal to difference of energies in the respective levels. Right? तो अब क्या करेंगे हम करेंगे therefore En minus EP equal to h nu. Right? Therefore En is minus me raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square minus of minus me raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square और यहाँ पे p square और यहाँ पे n square. Right? Equal to h nu, मतलब h nu is hc by lambda. So this is equal to hc by lambda. अब एक काम करेंगे, इसमें से जो कॉमन है बाहर निकाल लो. You can take it out common. So what you can take out common is minus me raised to 4 8 h square epsilon 0 square कॉमन निकाल दिया. माइनस भी कॉमन निकाला है तो यहाँ पे बच गया 1 by n square. राइट? क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है आपने.
अगर इसको माइनस को कॉमन नहीं निकालते तो ये आता -1/n²। गुड। तो ठीक है, माइनस इसको रखो अंदर फिलहाल, 1/n² विद नेगेटिव साइन, और ये माइनस माइनस प्लस 1/p² इक्वल टू hc/λ। देयरफॉर h और c को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा h³ और मल्टीप्लाइड बाय c। तो me⁻⁴/8h³ c ε0² 1/p² माइनस 1/n² इक्वल टू 1/λ। तो आ गया आपके पास ये वेवलेंथ का इक्वेशन। देयरफॉर 1/λ इक्वल टू me⁻⁴/8h³ c ε0² 1/p² माइनस 1/n²। अब अगर आप m e h c ε0 ये सारे वैल्यूज डालोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो हियर दिस होल थिंग, ये जो पूरा का पूरा है, दिस होल थिंग, दिस वन, दिस इज इक्वल टू आर बी, रिडबर्ग कांस्टेंट है ये। तो एक ही बात है, आर लिखो या सिर्फ आर सफिक्स बी लिखो तो एक ही चीज है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आती है SI यूनिट में 1.093 into 10⁻⁷ पर मीटर। तो सो क्लोज एग्रीमेंट यहाँ पे in this case which was empirical relation based on purely manipulating with numbers, purely on observation, वहां पे 1.097 आया और यहाँ पे 1.093 आया, so they are in close agreement। good good। so you have therefore 1/λ equal to r b, which is Rydberg constant। I will just omit this b, I don't want to write it down। तो ठीक है, बुक टू बुक नोटेशन चेंज होता है, डजंट मैटर रियली। तो 1/p² माइनस 1/n²। और जो 1/λ है इसको समटाइम्स they write down this as nu bar। nu bar is not frequency, क्योंकि frequency होता है c/λ, राइट। c नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 1/λ है, तो frequency नहीं है, इसको वेव नंबर बोलते हैं। so this is called as wave number। तो 1/λ is called as wave number, so it is equal to r 1/p² minus 1/n², where this nu bar is 1/λ, which is called as wave number। good। अब डिपेंडिंग ऑन ट्रांजिशन, कौन से फिक्स्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा है और कौन से हायर ऑर्बिट्स से हो रहा है, यू नीड टू लुक एट दिस वर्ड प्रॉपरली। कौन से फिक्स्ड लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब लोअर ऑर्बिट इज फिक्स्ड, और कौन से हायर ऑर्बिट्स से हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अब हमको करना क्या है, वी वांट टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन डिटेल, एंड एज यू नो कि देयर आर डिफरेंट सीरीज व्हिच विल ओरिजिनेट, क्योंकि ट्रांजिशन तो फिर ग्राउंड स्टेट भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे भी हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, 7 to 1, infinity to 1। so when the transitions occur at first level, उसको बोलते हैं लीमेन सीरीज, लाइमेन या लीमेन, how you, doesn't matter how you pronounce it। so some people say Lyman, some say Lyman, okay, doesn't matter, Lyman series। okay, then if the transition, मतलब p की वैल्यू, p लोअर ऑर्बिट है, याद रखना, इसलिए मैंने वहां मेंशन किया कि pth लोअर ऑर्बिट। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गैस को एक्साइट तो कर दिया, अब एक्साइट कर दिया तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा है, हो सकता है दूसरे पे हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो अगर सेकेंड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब p की वैल्यू आप डालोगे 2, तो p की वैल्यू 2 के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये था बाल्मेर, राइट। सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय बाल्मेर, इसलिए इसको बोलते हैं बाल्मेर सीरीज। तो p की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so on so forth, राइट। फिर उसके बाद आता है पास्चेन, लीमेन बाल्मेर पास्चेन ब्रैकेट फुंड।
तो उसके बाद आता है पास चेन। पास चेन में आता है थर्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन p इक्वल टू 3, कहां से 4 5 6 7। उसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट पे कहां से ट्रांजिशन होता है, फोर्थ ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होता है, कहां से 5 6 7 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट इज फुंड। फुंड में ट्रांजिशन होता है p इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट, राइट, कहां से 6 7 8 9 10 सो ऑन सो फोर्थ। तो जब ये ट्रांजिशंस होंगे तो ईच टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन इट विल इमिट एनर्जी। तो जो ये लाइमेन सीरीज है इसमें जो एनर्जी इमिट हो रहा है, फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, दे आर इन अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। That is why we cannot see it. We will mention the values, but just for a rough introduction. जब p equal to 2 fixed orbit पर transition होगा, the lines are in visible region, और आपको already पता है h alpha, h beta, h gamma and h delta. 6563, 4868, 4341, 4202 all are in visible. Then when the transition is at p equal to 3, the energy emitted, photon emitted is in the form of near, is in the region of near infrared. तो around, if I'm not wrong, ये आता है आपका roughly पास्चियन सीरीज आपका आता है कुछ 12,000 से 18,000 19,000 के आसपास, 12,000 some angstrom and around 18,000 something. Then next series is bracket. Bracket is in mid infrared, or it is around, if I'm not wrong, 25,000 से 40,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है. Then the last series phone goes into far infrared region, around 70,000 or 80,000 or something like that. तो एक एक करके अब हम लोग को सीरीज भी देखना है, और हम सीरीज के साथ साथ एक काम और करेंगे, हम ट्रांजिशंस भी दिखाते जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कौन सा, दिस वन, En minus 13.65 n square eV. This is looks very simple but has a lot of details. If I put n equal to 1, I get ground state. तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ground state दिखा देता हूं, मतलब first orbit I will show. So let's say this is the first orbit, और orbit को भी मैं circular नहीं दिखाऊंगा, I will show it with a straight line. एक ही बात है, इफ यू वांट टू शो सर्कल्स ओके, बट देन सर्कल्स अगर आप ड्रॉ करते हो तो फिर ट्रांजिशन दिखाना डिफिकल्ट हो जाता है. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूं एंड दिस स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 1. तो यू नो दिस इज n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट. और आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, माइनस 13.6 eV. देन यू हैव, मैं जस्ट फॉर रेफरेंस मैं डमी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बाद में इसको हटा दूंगा. आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस डमी लाइन, आई विल रिमूव दिस डमी लाइन लेटर. ये सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए. गुड. देन n इक्वल टू 2. अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, इफ यू पुट n इक्वल टू 2 you get minus 13.6 by 4, 3.4 I guess, if I'm not wrong, it is 3.4 with a negative sign. तो ये n equal to 2 लेवल है, और यहाँ पे एनर्जी है minus 3.4 eV. तो let us do it this way. एनर्जी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते जाता हूँ so that it will be quite clear. तो ऐसा है. Then if you put n equal to 3, what will you get is minus 13.6 by 9. तो ये आता है 1 point something, to be precise 1.5, minus 1.5 eV. अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो you will have minus 1.5 eV. Then if you put, मैं जानबूझ के लेवल्स का डिफरेंस अलग-अलग रख रहा हूँ. Intentionally the distance between two energy levels is different, it's not the same. क्योंकि फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जब एक एटम दिखाते हैं तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज, नॉर्मली हम इक्वल डिस्टेंस पे ऑर्बिट ड्रॉ कर देते हैं, व्हिच इज नॉट करेक्ट. व्हाई नॉट, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल. वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड यू विल नो. इफ यू पुट n equal to 4,
minus 13.6 by 4 square 16 which is minus 0.85. तो फोर्थ एनर्जी लेवल जो होगा वो फोर्थ एनर्जी लेवल इट विल बी, जस्ट अ मिनट, ओके, थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, आई नीड टू शो मेनी लेवल्स हियर, गुड। तो n equal to 4, n equal to 4 will correspond to minus 0.85 eV. Good. Then if you put n equal to 5, minus 13.6 by 25, तो roughly हाफ से थोड़ा बड़ा होगा ना, क्योंकि माइनस 13.6 का डबल करोगे तो 27 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे 25 आ गया, माइनस 13.6 by 25 इज 0.54 समथिंग, 0.54। तो द नेक्स्ट लेवल दैट यू विल गेट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ऐसा आएगा, तो n equal to 5, n equal to 5 is 0.54 eV. Good. Then if you put 6, तो minus 13.6 by 36, और वो आता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, but it is some level, तो some level anyways, तो there is some level, 6th level, फिर 7th, 8th, 9th, 10th and so on so forth। तो ऐसे ऊपर हायर लेवल है, ये हायर लेवल है, ये भी हायर लेवल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे आपके पास लेवल है। अब आप बोलोगे एज यू सी, एज यू कैन सी, मैंने क्या किया है, जैसे जैसे, अभी इसको हटा देते हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती गई वैसे वैसे लेवल्स पास में आते गए। यू सी दे आर गेटिंग क्राउडेड, है ना। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, n equal to 1 और n equal to 2 में। ऐसा क्यों ड्रॉ किया, लुक एट एनर्जीज, minus 13.6 और minus 3.4, डिफरेंस इज 10.2, minus 10.2। सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस कितना है, minus 3.4 प्लस 1.5, 1.9, राइट। पहले दो में डिफरेंस कितना था, 10.2, यहाँ कितना है 1.9। तो पहले दो और दूसरे दो में कम है डिफरेंस, इट्स नॉट द सेम, तो इसलिए हमने इसको क्राउडेड किया है। फिर थर्ड एंड फोर्थ में कितना है 0.65, राइट। फिर बाद में कितना है 0.21। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट की बात कर रहे हो, हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस कम 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 होता जा रहा है। मतलब क्या होता है कि हायर ऑर्बिट्स दे आर क्राउडेड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इज व्हाट मैटर्स। तो कभी भी याद रखना, आप इक्वल डिस्टेंस पे लेवल दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वैसा है नहीं, तो यू कैन नॉट शो। तो व्हाई आर वी शोइंग दैट कि पहले दो ऑर्बिट में, पहले दो लेवल्स में एनर्जी मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है। फिर सेकेंड और थर्ड में एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया, तो फिर इसका मतलब सेकेंड और थर्ड में लेवल्स में डिस्टेंस भी कम होगा। थर्ड एंड फोर्थ में एनर्जी का डिफरेंस और कम हो गया, थर्ड एंड फोर्थ में एनर्जी का डिफरेंस और कम हो गया, मतलब दोनों में डिस्टेंस भी कम होगा। तो ऐसे करते करते हायर ऑर्बिट्स दे बिकम वेरी वेरी क्राउडेड, और अल्टीमेटली क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस है, वी कैन नॉट शो एवरीथिंग हियर, तो मैंने 5 के बाद कुछ नहीं दिखाया, मैंने बता दिया कि सीधा सीधा n इक्वल टू इंफिनिटी है, राइट। गुड। तो इंफिनिटी में पता है आपको En इक्वल टू माइनस 13.6 बाई इंफिनिटी स्क्वायर, मतलब 0, तो दैट इज एनर्जी 0, राइट। अब एज आई टोल्ड यू, ट्रांजिशंस पहले ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन हुआ तो दैट गिव्स यू लीमेन सीरीज व्हिच इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो वो ट्रांजिशन कहाँ होता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे। कहां कहां से होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आ गया आपका पहला ट्रांजिशन, राइट। देन यू हैव नेक्स्ट ट्रांजिशंस which are basically occurring from next higher orbits। तो देखो n equal to 2, p equal to 1, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, ऐसा चलता जाएगा। तो these are the transitions that you will be getting, okay। तो ऐसा चलता जाएगा यहाँ पे, and then from infinity to 1, तो this is what I will show। तो ये जो transitions है, this are giving you one series which is called as Lyman or Lyman series, and this is in ultraviolet region।
1 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, and higher orbits to 1, fixed lower orbit. Then you have transition to n equal to 2, बाल्मेर सीरीज. और अगर आप बाल्मेर सीरीज को देखोगे तो पहला ही था 6563. और एक चीज पता होनी चाहिए, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो En minus EP is hc by lambda. मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू hc अपॉन En माइनस EP. जितना एनर्जी डिफरेंस कम उतना वेवलेंथ ज्यादा. गुड. मतलब सबसे बड़ा वेवलेंथ जो था 6563, इट इज कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन 3 to 2, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा, और एनर्जी डिफरेंस कम किस में है, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में है. सेकंड और फोर्थ में तो ज्यादा है ना, सेकंड और फिफ्थ में भी ज्यादा है, सेकंड और इंफिनिटी में भी ज्यादा है. तो द मिनिमम एनर्जी, आई मीन एनर्जी डिफरेंस इज लेस फॉर ऑर्बिट 3 and 2. तो सबसे बड़ा वेवलेंथ 6563 इज कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2. तो ये 3 to 2 ट्रांजिशन हो गया, राइट. मैंने रेड दिखा दिया क्योंकि 6563 इज ऑरेंज एंड आई डोंट हैव ऑप्शन ऑफ ऑरेंज, तो मैंने इसलिए रेड दिखा दिया इसको. एनीवेज, देन यू हैव 4868. तो 4868 मैं इसको ग्रीन दिखा दूंगा, तो आई विल शो ग्रीन 4868 मोर और लेस. ओके, देन तो यू हैव दिस. मैं सिर्फ इसको कलरफुल दिखाने वाला हूँ बिकॉज देन ऑफ कोर्स you need to know कि why colorful, because in the visible range and human perception of visible range is different colors. So that is why. And then you have 4341. 4341 and ultimately you will have one more line. तो ये आ गया आपके पास 4341. 4341 occurs from, as you know, it comes from 5 to 2, right? तो 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2 and so on and so forth. तो अभी मैं वो दिखाऊंगा नहीं. And then ultimately I will show one more line here, some transition here which is occurring, some transition I will show which is occurring from, let us say, infinity to this. तो ये हो गया आपके पास बाल्मेर सीरीज. उसके बाद होता है ट्रांजिशन थर्ड लेवल पे, लीमैन बाल्मेर पाश्चेन. पाश्चेन सीरीज का ट्रांजिशन होता है थर्ड लोअर ऑर्बिट पे. कहां से? फोर्थ से. और कहां से? फिफ्थ से. एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसे ट्रांजिशंस होंगे फ्रॉम 4 to 3, 5 to 3, इंफिनिटी टू 3, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये आ गया आपके पास. मैं यहाँ पे लाइंस कम कम दिखाते जा रहा हूँ, doesn't matter really. तो it is just डायग्राम. तो ये आ गया आपके पास लीमैन बाल्मेर फर्स्ट चेन. देन यू हैव ब्रैकेट में ये ट्रांजिशन होता है, एज यू नो, फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू फोर्थ लोअर ऑर्बिट. यू विल हैव फ्रॉम 5 to 4. यू विल हैव फ्रॉम सम इंफिनिटी -1 to 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऐसे आपको ट्रांजिशन मिलने वाले हैं. तो ये आएगा आपके पास ब्रैकेट सीरीज. देन लास्टली यू हैव फुंड में ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू लोअर ऑर्बिट्स, तो समथिंग लाइक दिस. तो ऐसे ट्रांजिशंस होते हैं इसमें. तो यू हैव फुंड सीरीज. ओके, तो दिस इज ऑकरिंग एट n equal to 5. दिस इज फुंड सीरीज. तो दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट. ये हाइड्रोजन का ही है, हम बाकी के बारे में बात करेंगे. अब इंपॉर्टेंट इज ये जो सारे सीरीज ट्रांजिशन आपने देखे उसका हम थोड़ा डिटेल लिख लेंगे. तो हियर यू हैव दिस फॉर्मूला. सो नाउ अ सीरीज, या फिर बोल सकते हो different sets of wavelength, different sets of wavelength are produced depending on transitions from higher orbits
from higher orbits to fixed lower orbits, right? तो उसमें पहला सीरीज, each set is called as a series, तो उसमें पहला सीरीज is Lyman series. So अब I will not write down a lot of theory here. सिर्फ मैं बता दूंगा ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, right? So when the transition is from higher orbits to first orbit, then the series so obtained is called as Lyman series. तो यहाँ पे value of P is 1 and N is 2, 3, 4, 5 and so on and so forth. So therefore you will get 1 by lambda equal to R, 1 by P square, P की value 1 है, minus 1 by N square, right? और आपको पता है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होते हैं दे आर बेसिकली गिविंग यू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो यूवी रीजन में आता है, गुड। और इसके पहले दो वैल्यूज हम मेंशन करते जाएंगे। तो फर्स्ट टू वैल्यूज हियर, फर्स्ट टू वैल्यूज मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम यू सी 2 to 1 and 3 to 1. So these two transitions are 1 to 16 and 1025. 1 to 16 and 1025 angstrom. और ये ट्रांजिशन ऑफ कोर्स यू सी वेवलेंथ बड़ा है तो एनर्जी यू सी वेवलेंथ इज ग्रेटर, तो एनर्जी डिफरेंस शुड बी लेस स्मॉल। तो ये आएगा 2 to 1, ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, ये आएगा 3 to 1, गुड। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो सिमिलरली मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूं, बाद में करेंगे। देन यू हैव बाल्मेर सीरीज। तो बाल्मेर सीरीज में यू नो दैट P इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, 1 by lambda इक्वल टू R, 1 minus 2 square minus 1 by n square, 1 by 2 square minus 1 by n square, this is what you will get। और इस केस में as you know this is in visible region, this is in visible region of the spectrum। और इसके पहले दो लाइन आपको पता ही है, 6563 angstrom and 4868, बाकी भी पता है बट we will just note down first two। तो ये है 3 to 2 ट्रांजिशन और ये है 4 to 2 ट्रांजिशन, राइट? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन नेक्स्ट इज लीमेन हो गया, बाल्मेर हो गया, पास्चेन में जो ट्रांजिशन होगा, in this case P equal to 3, N equal to 4, 5, 6 and so on so forth। तो फॉर्मूला बनेगा 1 by lambda equal to R, 1 by 3 square minus 1 by n square। और यहाँ पे ये जो आता है ये आता है नियर इंफ्रारेड में, नियर IR में। और इसमें जो पहले दो वैल्यूज है, टू बी प्रिसाइज मैंने आपको रफली बताया था कि कुछ अराउंड 12,000 18,000 के आसपास आता है, बट टू बी प्रिसाइज इट इज 18,750 and 12,820 ऐसा आता है। एंड दिस ट्रांजिशन इज फ्रॉम 4 to 3, this is from 5 to 3, right? This is what you get। Then I need to keep some space after every series for something that we have not discussed so far। वो डिस्कस करेंगे तो जगह छोड़ देते हैं। Then you have fourth, remain बाद में पास्चेन ब्रैकेट सीरीज में you know transition is occurring at 4, कहां से 5, 6, 7 so on so forth। तो यहाँ पे 1 by lambda equal to R, 1 by 4 square minus 1 by n square। और ये आता है मिड IR में, और इसकी जो पहले दो वैल्यूज आती है इट इज अराउंड 40,518 and 26,000 something 26,253। तो ये आएगा आपका 5 to 4 ट्रांजिशन, ये आएगा 6 to 4 ट्रांजिशन, गुड। देन लास्ट फुंड का P साइलेंट है, तो फुंड सीरीज इट ऑकर्स P equal to 5, N equal to 6, 7 and so on
सो फोर्थ, और ये आता है आपके पास, अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं पहले. फॉर्मूला विल बिकम 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू आर 1 बाय 5 square minus 1 by n square. And you should know that in this case ये आता है आपका far IR में, far infrared में. पहले दो वैल्यूज जो है ट्रांजिशंस के 74,587, 74,587 and next one is around 46,533. तो ये बेसिकली मिड और फार में आता है क्योंकि 46,500 and something it is in mid. तो ये आता है मिड एंड फार आईआर में. तो मिड एंड फार आईआर, राइट. तो ये ट्रांजिशन है आपका 6 to 5 और ये ट्रांजिशन है आपका 7 to 5. दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीरीज लिमिट. सीरीज लिमिट is nothing but smallest wavelength emitted in every series. For example, अगर आप बालमेर की बात कर लो तो बालमेर में 3 to 2 ट्रांजिशन इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया E माइनस EP इज Hc बाय लैम्बडा. तो लैम्बडा इज इक्वल टू Hc अपॉन E माइनस EP. तो एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा. तो एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम होगा. तो सीरीज लिमिट इज नथिंग बट the smallest wavelength emitted in each series. So series limit, the smallest wavelength, emitted in each series is known as series limit. तो अच्छे से समझ लो, एनर्जी डिफरेंस जितना कम उतना वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा उतना वेवलेंथ कम. सीरीज लिमिट क्या है? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है. किसी भी सीरीज में स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? जब इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होगा. तो जब इन्फिनिटी से 1 पे ट्रांजिशन हुआ तो ये हो गया सीरीज लिमिट ऑफ लीमेन सीरीज, लाइमेन सीरीज. जब इन्फिनिटी से 2 पे ट्रांजिशन हुआ तो इट बिकम्स सीरीज लिमिट ऑफ बालमेर सीरीज. व्हेन there is transition from infinity to 3, it is series limit of Paschen. Infinity to 4, series limit of bracket and then Kund. तो ये जो मैंने empty space रखा है, fill in the blanks. So let us fill in the blanks here. तो ये जो series limit है, series limit, as you know कि series limit में transition होगा always from infinity, always 1 upon infinity square 0. मतलब सीरीज लिमिट यहाँ पे आपको मिल गया 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू r. इसका मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1 बाय r. तो ये जेई नीट सीटी में बहुत काम में आएगा. डायरेक्टली 1 बाय r फाइंड कर लो, मिल गया आपको स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. अब इस केस में जो सीरीज लिमिट होगा वो आपके पास आएगा 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू r 1 बाय 2 स्क्वायर, क्योंकि वो तो बाद में 0 हो गया. 1 बाय 2 स्क्वायर मतलब कितना? 4 है ना. तो 4, तो ये आ गया आपके पास r बाय 4. मतलब वेवलेंथ कितना मिलेगा? 4 बाय r. 4 बाय r ये मीटर इनवर्स है, याद रखो. इसका रेसिप्रोकल आपको मीटर देगा. नीचे r आएगा, यहाँ पे भी 4 बाय r. अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं. तो व्हाट यू सी, लुक एट द फॉर्मूलाज. p square by r. Series limit in any series is p square by r. और p की वैल्यू पहले के लिए क्या थी? 1. तो 1 square by r. दूसरे के लिए क्या थी? 2. तो 2 square by r. तीसरे के लिए क्या आएगा? 9 by r. Very good. Series limit is nothing but, in this case, 9 by r. Here it will be 16 by r. So series limit here will be 16 by r. Series limit lambda in this case will be 16 by r, and here will be 25 by r. So here series limit will be 25 by r.
So that is all about hydrogen spectrum. So as I told you, in reality आपको दिया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. एक ही डिफरेंस है, वन डिफरेंस, एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1, फॉर all other atoms you put Z. Z is number of protons and protons is atomic number. So in the next session what we are going to do is we will basically derive all these formulas very quickly, क्योंकि concept तो same है, postulate तो change नहीं होंगे, जो postulate है वही postulate है. एनर्जी का इक्वेशन जैसे डिराइव किया था वैसे ही डिराइव होगा, रेडियस का इक्वेशन जैसे डिराइव किया था वैसे ही होगा. तो स्टेप्स आर द सेम, एग्जैक्टली द सेम. पहले मैंने हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का डेरिवेशन का पार्ट सिंपल लगता है, बिकॉज देयर इज नो जेड हियर, राइट, मतलब एटॉमिक नंबर वहां पे आता नहीं है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू ऑल दिस फॉर एनी एटम इन जनरल. हमने सिर्फ हाइड्रोजन किया, जनरलाइज कर देंगे, एंड देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे.